Okay, students. So now we will deal with question number 5. Read the question very properly. Question में क्या given है? Draw SFD and BMD for the beam loaded as shown in the figure. Okay. So आपको SFD draw करना है और BMD draw करना है for the beam. This is the beam loaded as shown in the figure. Okay. So until now जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसका जो फिक्स्ड पॉइंट था स्टूडेंट्स, इट वाज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ the fixed point has shift on the right hand side. Means instead of moving from right to left हमें move करना पड़ेगा left to right. Very very important. Okay, instead of moving from right to left we will move from left to right. Means जो consideration हमने किए थे downwards positive, upward negative, all that things, okay, all that things we are going to consider as reverse there. Okay, so let us see how to do that very properly in a proper manner. So first thing first, we will convert this diagram students into our normal FBD. ठीक है, ये नॉर्मल FBD जो डायग्राम है स्टूडेंट्स, सो वो नॉर्मल FBD डायग्राम में हम उसको कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व इट. ठीक है, परफेक्ट. सो नाउ एज यूडीएल इज बिन एक्टिंग, सो जो फोर्स एक्ट होगा स्टूडेंट्स, दैट फोर्स विल एक्ट वेयर ऑन द मिडल. मिडल मीन्स 3 का हाफ कितना हो गया? 1.5 मीटर. सो इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन 1.5 मीटर. ठीक है, सो आई विल राइट डाउन हियर 1.5 meter, and then here will be 2 meter. Okay, 2 meter is been given और यहाँ पर भी ये 2 ही मीटर given है. ठीक है, also this is given as the 2 meter. So ये point D है. So here will be what guys? Reaction at D. This will be our point A. Extra point add नहीं करना है. जो point question में दिया है that we have to take C और ये D point है. Okay. So now UDL is acting where students? UDL is acting at the center. Center में UDL act हो रहा है. So what will be its magnitude? Magnitude के लिए simple logic I have told you कि ये जो magnitude है 20, उसको length से multiply कीजिए. 20 into 3, 20 into 3, जितना भी length होगा उससे multiply कीजिए. So 20 into 3 will be 60. So its answer will be 60 kilo Newton. And here it is 40 kilo Newton. एक चीज याद रखो. Now we are moving from left to right here. Are you understanding guys? Left to right हमें move करना है. So whenever you are moving left to right here, downwards हो गया negative और अपवर्ड हो गया पॉजिटिव. ठीक है, राइट टू लेफ्ट में इसका इनवर्स है. डाउनवर्ड्स अगर गए तो वो पॉजिटिव होता है, अपवर्ड में नेगेटिव होता है, बट लेफ्ट टू राइट एज वी आर गोइंग, डाउनवर्ड इज नेगेटिव. सो नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम देखते हैं that how to properly approach it. Okay, so as 60 kilonewton is going downwards, so that will be minus 60, minus 60. 40 is going upwards, so plus 40, and RD is going upwards, so plus RD, it will become equals to 0. So therefore आपको यहाँ से reaction at D बहुत ही आराम से मिलेगा. So minus 60 plus 40 will be minus 20. Minus 20 will go there, it will become plus 20. So 20 किलो न्यूटन आपका आंसर है. Are you understanding students? 20 किलो न्यूटन ये रहा आपका आंसर. This is the answer of what student? This is the answer of RD. Understanding this? Okay, perfect, perfect. So this is the RD here, 20 kilonewton. ये रहा 20 kilonewton students. Okay, perfect. So now what we are going to do is, we are going to solve your shear force calculation. ठीक है, हम यहाँ पर shear force के calculation जो है that we are going to do here, that we are going to solve here. So perfect, let me see it. So first of all, shear force calculation, let us do that calculation. Okay, सबसे पहले shear force calculations करते हैं. Shear force calculation. Now here we have to move left to right students. हमें move होना है, move करना है left to right से. Okay, so what we will do here is, we will start with shear force from A point से start करते हैं जरा. Okay,
we'll start from A point. Now remember, when we go from right to left, हम हमेशा right में देखते थे, करेक्ट है ना, राइट में हमेशा देखते थे, बट यहां पर एक ट्विस्ट है. whenever we are going from left to right, we have to always see on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड की ओर देखना है हमें. we have to see where, guys, on the left hand side here. So first of all, I will write down shear force of A. Okay, A of right, right के पास जाना है और लेफ्ट की तरफ देखना है. ओके, लेफ्ट में कुछ फोर्स दिख रहा है स्टूडेंट्स? नहीं है, सो जीरो. तो सिमिलरली शेयर फोर्स ए ऑफ राइट, सो ए के राइट साइड में जाना है और लेफ्ट साइड में ही देखना है कुछ फोर्स है क्या. सो एनी फोर्स आर देयर हियर स्टूडेंट्स? कुछ फोर्स है? नो. वेरी गुड, प्रॉपर प्रॉपर लेफ्ट साइड देखना है, याद रखिए. लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट देखना है, राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट देखना है. सो नाउ बी ऑफ लेफ्ट, बी ऑफ लेफ्ट, सो बी ऑफ लेफ्ट के पास जाना है और लेफ्ट की तरह देखना है, लेफ्ट की तरफ देखना है. क्या है? 60. सो एज वी नो, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, अपवर्ड्स इज पॉजिटिव. दिस वी ऑल नो डियर स्टूडेंट्स. सो डाउनवर्ड्स जा रहा है, सो -60. इट विल बी व्हाट गाइस? -60. और बी के राइट साइड में आकर लेफ्ट साइड ही देखना है. इफ यू विल डू दैट स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स दिख रहा है, दैट इज 60, बट ऑल्सो इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? परफेक्ट. नाउ कम फॉर सी ईयर. सी के लेफ्ट साइड में आपको देखना है, सी के लेफ्ट साइड में. ओके, लेफ्ट साइड में आना है और लेफ्ट साइड में ही देखना है. सो एस एफ सी ऑफ लेफ्ट साइड की ओर देखना है, दैट विल बी -60. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एस एफ सी ऑफ राइट, राइट साइड पे आना है और लेफ्ट साइड की ओर देखना है. सो एज यू कैन सी हियर इट इज -60 +40, +40 ऊपर जा रहे हैं, -60 +40 हो गया -20 स्टूडेंट्स. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया -20. ओके, इन द सेम वे, इन द सेम वे इफ वी विल सी एस एफ ए डी है ना, हाँ, डी ऑफ लेफ्ट, डी ऑफ लेफ्ट में भी आंसर क्या आएगा? -20 ही आएगा, लेफ्ट में 20 आएगा. और एस एफ डी ऑफ राइट, इट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? इट विल बी 0, क्योंकि ये +20 ऐड होगा. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली? आपको समझ रहा है क्या चालू है स्टूडेंट्स? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ओके, डी के लेफ्ट साइड में -20 रहेगा, बट आप राइट साइड में अगर गए तो -20 +20 भी आ जाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज विच कैलकुलेशन? शेयर फोर्स कैलकुलेशन. इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क. परफेक्ट, परफेक्ट स्टूडेंट. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन. दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? दैट विल बी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस. दैट विल बी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन से, ठीक है. सो नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट ए. ओके, ए पॉइंट की ओर देखिए. ओके, सो नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए तो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 0 ही रहेगा, है ना, 0 ही रहेगा. अभी आपको कैसे आना है? आपको यहां से आना है स्टूडेंट्स. ओके, यू हैव टू मूव फ्रॉम हियर लाइक दिस. अभी बेंडिंग मोमेंट एट बी की ओर आते हैं. बेंडिंग मोमेंट एट बी, it will be what students? It will be what? 60 into 1.5. अरे आर यू गेटिंग? 60 into 1.5. बट सर यहाँ पर तो कंफ्यूजन है कि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू, जहां पर भी सैगिंग होगा, that will be positive, that will be positive. Wherever hogging will be there, that will be negative, that will be negative. ये लेफ्ट और ये राइट में हो गया. सो लेफ्ट में देखो, अगर क्लॉकवाइज रहा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहा तो नेगेटिव. सो नाउ 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन इंटू दिस, ये कौन सा डायरेक्शन? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया स्टूडेंट्स, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया. ओके, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है देखिए. ओके, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव. सो -60 इंटू 1.5. टेल मी स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? 60 है ना वो, 60 इंटू 1.5. यस, द आंसर इज -90 किलो न्यूटन इंटू मीटर. अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बात याद रखो, अगर आप लेफ्ट टू राइट से जा रहे हो, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए
नेगेटिव लेना है आपको, ओके, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेना है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट बी, बेंडिंग मोमेंट एट बी के बाद बेंडिंग मोमेंट एट सी की बारी है, बेंडिंग मोमेंट एट सी की बारी है। सो ये 60 ट्रैवल करेगा सी पॉइंट तक, एट हाउ मच डिस्टेंस स्टूडेंट्स, 3.5। सो 60 इंटू 3.5, आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो -60 इंटू 3.5। ओके, सो नाउ अगेन यू विल डू दिस कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन एकदम बढ़िया से बढ़िया करो। तो दैट विल बी -210, दैट विल बी हाउ मच गाइस, -210 किलो न्यूटन इंटू वॉट स्टूडेंट्स, किलो न्यूटन इंटू मीटर आ गया। अभी सी का तो हो गया, अभी बेंडिंग मोमेंट लास्ट जो बाकी है डी। सो वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। लेट अस सी हाउ टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो 60 इंटू डी तक जाना है, 60 इंटू 2 + 2 4, 4 + 1.5 5.5 है ना, इतना डिस्टेंस तक जाएगा वो। सो इट विल बी -60 इंटू 5.5, ओके, +40 इंटू 2। सर ये प्लस कैसे क्या आया और 40 इंटू 2 कैसे आया? देखिए 60 इंटू डी तक तो पहुंच गया वो, बट 40 इंटू 2 ये है डिस्टेंस, 40 इंटू 2 तक का डिस्टेंस है। सो दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दिस विल बी प्लस। सो नाउ डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी द आंसर ऑफ बेंडिंग मोमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट ऑफ डी बताइए, दैट आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट इज द फाइनल आंसर हियर। Perfect, perfect. Right answer. It will be -250. It will be -250 kilonewton into meter. -250 kN -210 और -90 kN, और श्योर फोर्स भी सब माइनस में ही आ गया है। सो द लास्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू ड्रॉ व्हाट स्टूडेंट, एसएफडी एंड बीएमडी। आई हैव टोल्ड यू कि एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करते वक्त जो क्वेश्चन में दिया रहेगा डायग्राम, दैट ओनली यू हैव टू ड्रॉ, okay, that we have to draw here very properly students, okay, perfect। so सबसे पहले ये मिडल में लेता हूँ, तो जो एक्चुअली डायग्राम है वो डायग्राम से हम ड्रॉ करेंगे, okay, in the same way as we did for the earlier ones guys, we will plot here projections। हम ये सब प्रोजेक्शन सबसे पहले क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, ओके। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आया तो सिर्फ जो हम राइट टू लेफ्ट में कंसिडर कर रहे थे उसका ऑपोजिट सेंस लेना है, एंड देन यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दी सेम प्रोसीजर, वो सेम प्रोसीजर करते रहना है, ओके। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? परफेक्ट। नाउ सबसे पहले हमने देखे हैं कि शेयर फोर्स का सभी वैल्यू नेगेटिव आया है। सो थोड़ा मैं ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ ये एस एफ टी, ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट्स हियर। एस एफ ए एल और ए आर जीरो है, सो 0 पॉइंट में लिखते हैं। सो वेन एवर इट इज 0 पॉइंट इट विल बी ईयर ओनली स्टूडेंट्स, वेन एवर इट विल बी 0 इट विल बी ईयर। अभी ए के बाद बी है, बी डायरेक्टली कितना है स्टूडेंट्स, देखिए -60 है, ओके। सो इट इज व्हाट स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट व्हाट गाइस, -60, ओके। सो -60 मीन्स इट विल बी हियर समवेयर, ये रहेगा -60, ठीक है। ए हो गया, बी एल हो गया, बी ऑफ आर भी किधर है, बी ऑफ आर भी उधर ही है, ओके। सो दिस विल बी बी पॉइंट, अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग, ये बी पॉइंट कितने न्यूटन का है, 60 किलो न्यूटन का है। सो आई विल राइट डाउन हियर 60 किलो न्यूटन, ठीक है। सो देखो व्हेन वी गो डाउनवर्ड्स ये वो इंक्रीज होगा, -60 -70, ओके, डिक्रीज होगा मतलब -70 -80 -90, ऊपर जा रहे तो इंक्रीज होगा, है ना, नेगेटिव से ऐसे ऊपर पॉजिटिव होता है डियर। परफेक्ट गाइस, सो बी पॉइंट का भी हो गया है, परफेक्ट काम। नाउ सी ऑफ एल, अभी सी ऑफ एल, सी का भी पॉइंट कहाँ पर है, 60 पर भी है। सो यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 60। नाउ सी ऑफ एल तो हो गया है, सी ऑफ राइट देखिए -20, ये हाईएस्ट है ना, -20 थोड़ा बड़ा है। सो यही पॉइंट से मैं -20 की ओर जाऊंगा, मैं -20 की ओर प्रस्थान करूंगा। सो ये हो गया 20 किलो न्यूटन, ये हो गया 20 किलो न्यूटन, ओके। एंड देन उसके बाद देखिए
कि एस एफ डी ऑफ एल कितना है, -20 ही है, सो -20 में इट विल गो हियर, और उसके बाद वो तो 0 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर विच डायग्राम, एस एफ डायग्राम। सर बट आपने ये क्यों नहीं ज्वाइन किया? यस, ज्वाइन कर लेता हूँ। सर यहाँ पर इंक्लाइंड लाइन कैसे आया? हाउ द इंक्लाइंड लाइन हैव केम? सो एज यू कैन सी हियर कि ए और बी के बीच में क्या है? यूडीएल। वेन एवर यूडीएल इज देयर inside SFD diagram, which line will come, students? Inclined line आएगा. So I will write down here inclined line. Okay. So this is nothing but what, student? This is nothing but the SF, shear force diagram. ये हो गया shear force diagram. ठीक है? Understanding? परफेक्ट परफेक्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओर आप देखोगे तो ऑल दी वैल्यूज आर इन नेगेटिव ओनली, सो ये लाइन के नीचे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ए पॉइंट। ए पॉइंट तो 0 है, सो 0 यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पॉइंट 0 है ना, सो ए पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। एंड देन बेंडिंग मोमेंट एट बी -90 है। बेंडिंग मोमेंट एट बी -90, चलिए ठीक है, ये वैल्यू है 90 की वैल्यू। ओके। एंड देन उसके बाद और छोटा हो रहा है, -210 मीन्स और नीचे जाएगा 210 में। एंड उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, 250, -250, सो और ये नीचे जाएगा -250, सो 210 और ये 250। विच कर्व विल बी हियर स्टूडेंट्स? पैराबोलिक कर्व। ये इनसाइड से ऐसे ड्रॉ करना है, इनसाइड से ऐसा ड्रॉ करना है। और देन 90 to 20 हो गया, एंड देन 20 to 250। ओके, 20 to what, students? 20 to 250। Perfect, perfect. So what we'll do, we will just draw here this diagram. If you have any doubt, students, please ask. Okay, just ask if you have any doubt. ये हो गया आपका BM का calculation. This will be what, student? This will be BM calculation, bending moment diagram. And this is what, students? Shear force diagram. ये हो गया आपका shear force diagram. Okay. I hope you are understanding this very, very properly, guys. Fine. ठीक है. So if you have any doubt in this whole question, you can ask. आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। लेफ्ट टू राइट था, फिर भी कुछ कंफ्यूजन हुआ नहीं? वाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट वॉज स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स। कंसेप्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग रख रहा है, कौन सा भी सब्जेक्ट हो। ओके, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी रहा, बट अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी टू सॉल्व। एंड इन द सेम वे एज वी हैव रिटर्न द इंक्लाइन लाइन इन एसएफडी डायग्राम, ये पैराबोलिक कर्व जरूर लिखना है, भूलना नहीं है, अदरवाइज द मार्क्स कैन गेट अफेक्टेड। ओके। एसएफडी पॉइंट डी एक्सप्लेन करिए सर। ओके, एसएफडी का पॉइंट डी एक्सप्लेन करिए। ठीक है, ये डी पॉइंट है। तो सी देखो, सी के लेफ्ट साइड में -60 था और राइट में 20 था, सो -60 था। देखो बी के बाद डी ने लेना है, बी के बाद ये बी ऑफ राइट लेना है, कितना है? 60 है ना, सी 60 है। सो देखिए सी पॉइंट में -60 और -20 है, सो -60 यहाँ पर आया और -20 ऊपर गया, छोटा बड़ा है ना -20 -60 से, सो इट गोज अपवर्ड्स। एंड देन अगेन सी ऑफ डी ऑफ एल अगर देखे, वो -20 ही है, सो -20 में क्लिक किया मैंने, एंड देन इट बिकम्स 0 ईयर गाइस, इट बिकम्स 0 ईयर। फाइन, अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? ओके, एकदम इजी स्टेप्स, एकदम इजी मेथड्स आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ओके, डोंट गेट पैनिक विद दिस कि सर कुछ समझ ही नहीं रहा है। परफेक्ट, ग्रेट। सो लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस टाइप, दैट इज अगेन लेफ्ट टू राइट कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर कुछ मोमेंट्स दिए गए, सम मोमेंट्स इज बीन गिवन हियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले we will start with question number 6. Okay, last question of this type. A cantilever beam is fixed at point D and it is subjected to point loads, ठीक है, and moments। ओ हो,
मतलब यहाँ पर अभी मोमेंट्स भी दिया गया है as shown in the figure. Draw SF and BM diagram. We have to draw here SF as well as bending moment diagram. SF डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है। फाइन। सो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी एफबीडी। इसका एफबीडी कन्वर्जन देखिए, यहां पर ऑलरेडी किया है मैंने। F20, यहां पर 20 लिखना है, 20 किलो न्यूटन। And in the same way, here also we have 10 kilonewton meter, 10 kilonewton into meter है स्टूडेंट्स, ठीक है। रिएक्शन एट डी है, सो आर डी लिख लेते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू यूज विच अप्रोच स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट वाला अप्रोच हम यूज करने वाले। वी आर गोइंग टू यूज योर लेफ्ट टू राइट अप्रोच। लेफ्ट टू राइट अप्रोच हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ठीक है। So now this is pretty interesting now. Perfect. So सबसे पहले first thing first, we will use your summation of f of y equals to 0. As we are going from left to right, downwards रहेगा negative, upwards की value रहेगी positive. Okay. So sir ये 20 लेना है क्या? No, it is not a force, it is a moment. So आप जब moment का calculation करोगे, जब आप bending moment का calculation करोगे, in that we have to use it. Okay, are you understanding? So ये 20 किलो न्यूटन यूज नहीं करना है, सिर्फ फोर्स देखिए 40 नीचे जा रहा है, सो माइनस 40 आता है। 20 भी नीचे जा रहा है, सो -20 आ रहा है। प्लस आर डी विल बी इक्वल्स टू 0, -40 -20 -60, -60 विल गो ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल बिकम +60। सो आपका आंसर जो है आर डी का स्टूडेंट्स, वो कितना आया है? आर डी का जो आंसर है वो 60 किलो न्यूटन आया है पॉजिटिव, मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब ये पॉइंट करेक्ट है, ठीक है। सो दिस विल बी 60 किलो न्यूटन। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स कि आर डी की वैल्यू 60 हो गई। सर हम कैंटिलीवर में एक ही रिएक्शन क्यों फाइंड करते हैं? व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड ओनली वन रिएक्शन स्टूडेंट्स? बिकॉज यहाँ पर एक ही फिक्स्ड पॉइंट है ना, एक ही सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक। ग्रेट। नाउ वी विल सॉल्व shear फोर्स कैलकुलेशन। बताइए बताइए, व्हाट इज द आंसर? या परफेक्ट परफेक्ट, कुछ जरूरत नहीं है। सो हियर वी हैड यूज्ड इट, थोड़ा सा ऊपर लेते। सो लेट अस सी हियर shear फोर्स कैलकुलेशन। shear force calculations। ओके, सो वी ऑल नो दैट डाउनवर्ड्स क्या रहेगा बताइए? डाउनवर्ड्स विल बी नेगेटिव, अपवर्ड्स विल बी पॉजिटिव। राइट टू लेफ्ट के वक्त हम राइट के पास देखते थे, बट यहां पर हम को लेफ्ट के पास देखना है। सो shear फोर्स ऑफ ए ऑफ लेफ्ट, सो ए के लेफ्ट साइड में जाना है और लेफ्ट की ओर ही देखना है। कुछ फोर्स है क्या स्टूडेंट्स? नहीं सर, जीरो फोर्स। अभी ए ऑफ राइट में आना है। अगर आप ए ऑफ राइट में आए तो ये मोमेंट आपको दिख रहा है, बट हम मोमेंट तो फाइंड नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट स्टूडेंट्स? वी आर फाइंडिंग योर shear फोर्स। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? shear फोर्स ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बेंडिंग मोमेंट लिखने की जरूरत है shear फोर्स कैलकुलेशन में? नो। सो आई विल राइट डाउन योर 0, ए ऑफ आर। परफेक्ट। नाउ अगेन बी ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आना है और लेफ्ट की ओर देखना है। सो shear फोर्स ऑफ बी ऑफ एल इक्वल्स टू 0 रहेगा। इन द सेम वे आई विल राइट हियर बी ऑफ आर स्टूडेंट्स, राइट। बट अगर आप राइट साइड में आए तो एक ही फोर्स दिख रहा है 40, दैट इज गोइंग वेयर डियर स्टूडेंट्स? वो जा रहा है नेगेटिव, मतलब नीचे की ओर जा रहा है। सो दैट विल बी व्हाट गाइस? दैट विल बी -40। दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स? -40 हो गया बी का। अभी सी के लेफ्ट साइड में आना है। shear फोर्स ऑफ सी ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट साइड में आना है और लेफ्ट साइड में ही देखना है कि कितने फोर्सेस दिख रहे हैं। सो ओनली वन फोर्स इज बीन देयर, दैट विल बी -40 स्टूडेंट्स। दैट विल बी हाउ मच? -40 है, ठीक है। सी ऑफ लेफ्ट के बाद मैं सी ऑफ राइट में आऊंगा
और लेफ्ट की ओर ही देखूंगा। राइट में आकर लेफ्ट की ओर देखने में मुझे यह पता चलता है दैट 40 किलो न्यूटन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, perfect, or 20 be downward, so minus 60. Very good, very good, keep it up guys. Now shear force of ये point D है, करेक्ट। D के लेफ्ट साइड में आकर लेफ्ट साइड के पास ही देखना है और उसमें दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक 40 और एक 20, so that will be minus 60. and in the same way shear force D of right में अगर आप देखोगे minus 60 plus 60, इसका आंसर आपका आ गया है 0. So now shear force calculation is been over. Now the most important one, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है. So all the attention should be here. So next part is what students? Bending moment calculation. So whenever couple is been there, जो पॉइंट में जिस पॉइंट पर कपल आएगा उस पॉइंट का लेफ्ट और राइट बेंडिंग मोमेंट में भी लेना है। जैसे हमने शेयर फोर्स लिया ना लेफ्ट और राइट, वैसे ही लेफ्ट और राइट में आपको लेना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट। सो बेंडिंग मोमेंट ए ऑफ लेफ्ट में कुछ फोर्स है नहीं है, सो 0 लिखिए। बट अगर आप बेंडिंग मोमेंट ए ऑफ राइट की ओर आते हो, राइट की ओर, तो एक आपको मूवमेंट दिख रहा है, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माइनस, सर एंटी क्लॉकवाइज माइनस कैसे? सैगिंग के वक्त पॉजिटिव, हॉगिंग के वक्त नेगेटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के वक्त नेगेटिव। सर आपने लेफ्ट और राइट क्यों लिया है? क्योंकि कपल है, जिस पॉइंट पर कपल है उस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट आना ही चाहिए। सो राइट में अगर आप आए तो आपको एक मोमेंट दिख रहा है 20, बट वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस 20 किलो न्यूटन मीटर लिख रहा हो। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके अभी बी पॉइंट की बारी है, तो बी पॉइंट का लेफ्ट और राइट आएगा क्या? बी पॉइंट में लेफ्ट और राइट आएगा क्या स्टूडेंट्स? नो, बिकॉज वो पॉइंट में कपल ही नहीं है। सो अभी बी पॉइंट की ओर देखते हैं, तो कुछ फोर्स तो नहीं है, चलो ठीक है, फोर्स तो गया, बट एक मोमेंट दिख रहा है 20 का, वो भी अगेन एंटी क्लॉकवाइज में है, सो माइनस 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट अभी हम सी पॉइंट के पास आते हैं, सो सी पॉइंट का लेफ्ट साइड क्यों सर, लेफ्ट साइड क्यों कंसिडर करना है? बिकॉज एट सी पॉइंट ए कपल इज बीन एक्टिंग। सो सी पॉइंट में अगर आप देख रहे हो, सो एक फोर्स दिख रहा है 40 का, सो दैट 40 इंटू 2, 40 फोर्स तो है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो कपल रहता है हमारा नॉर्मल न्यूमेरिकल। सो माइनस 40 इंटू 2 तो हम करेंगे, बट ये फोर्स इंटू डिस्टेंस तो हो गया एक मोमेंट, और एक सेपरेट मोमेंट दिया है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज माइनस 20 का। So from here we will find out the value of bending moment of C of left. Minus 40 into 2 minus 80, minus 80 minus 20 minus 100 किलो न्यूटन मीटर। 100 किलो न्यूटन मीटर है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अभी C ऑफ लेफ्ट के बाद मैं C ऑफ राइट में आऊंगा। बेंडिंग मोमेंट ऑफ C ऑफ राइट, अभी C ऑफ राइट में आऊंगा तो 40 इंटू 2 तो रहेगा, माइनस 20 भी रहेगा, मतलब ये जो आंसर है ये आंसर तो रहेगा ही, बट उसमें एड ऑन क्या होगा? ये मोमेंट क्या गया है? क्लॉकवाइज। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी के राइट में आकर अगर आपने देखे तो 40 इंटू 2 तो है ही, माइनस 20 भी है, बट राइट साइड में एक मोमेंट हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, वो कपल का मोमेंट है, एंड दैट इज क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। So minus 20, 100, sorry, plus 20 will be what students? Minus 80 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट एट डी, लास्ट पॉइंट देखिए क्या है बेंडिंग मोमेंट एट डी। सबसे पहले माइनस 20 दिख रहा है, सो माइनस 20, उसके बाद माइनस 40 इंटू 4, सर ये कैसे क्या आ गया माइनस 40? ये 40 है, डिस्टेंस 4 है ना, ये माइनस 40। उसके बाद माइनस 20 इंटू 2, सर कैसे क्या, देखिए ना 20 इंटू 2 आ गया है,
और उसके बाद ये 10 किलो न्यूटन है, सॉरी ये 10 था ना, मैंने 20 लिख दिया, माय फॉल्ट, यहाँ पर 10 था, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। सो ये आ गया आपका 70, 20 तो ये था, ये राइट में आकर आपको 10 ही तो दिख रहा है ना, सो -70। परफेक्ट परफेक्ट। सो यहाँ पर +10 आएगा है ना, ये देखो ये 10। समझा सर? नहीं सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, देखिए देखिए। गुड गुड गुड। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी के पास आपको दिख रहा है ये -20, -40 × 4, -20 × 2 और +10। सो बेंडिंग मोमेंट एट डी का जो आंसर आएगा वो, यस, वो कितना है स्टूडेंट्स? हाउ मच इट इज स्टूडेंट्स? C/R। आपको C/R का कैलकुलेशन करना है, -90, सॉरी सॉरी सॉरी, माय फॉल्ट, सॉरी सॉरी। या वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, -90। और ये बेंडिंग मोमेंट एट डी का आंसर बताइए, बेंडिंग मोमेंट एट डी का आंसर बताइए, यस यस यस। बेंडिंग मोमेंट C/R का -90 आ गया, बेंडिंग मोमेंट एट डी का बताइए। हाउ मच इज द आंसर? -20, -160, -180, -180, -40, 220, 10 कितना आया है बोलो? यस, 210 आया है, -210 किलो न्यूटन इंटू मीटर। क्या बात है, किलो न्यूटन इंटू मीटर। So bending moment at D, bending moment at C of L, bending moment at C of R, bending moment at A of R and bending moment of A of L। कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स? बेंडिंग मोमेंट में आई विल गिव यू टाइम, जस्ट लुक, एक बार फिर से देख लो ए ऑफ एल क्या कैसे किया है, ए ऑफ राइट बी, सी ऑफ एल, सी ऑफ राइट डी। +10 BMD कैसे आया? ओके, ये +10 कैसे आया? सी ऑफ राइट है ना डियर, सी ऑफ राइट में आपको दिख रहा क्या है? सी ऑफ राइट में आपको दिख रहा क्या है? -20, -40 × 2, और राइट में अगर आप आए तो ये 10 भी तो ऐड हो रहा है ना, यस यस। 20 × 4 रहेगा लास्ट ला, ओके। सो 20 × 4 नहीं रहेगा, 20 × 2, क्योंकि डी तक आना है आपको, और 20 × डिस्टेंस कितना है? 2 ही है ना। 20 से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 2 मीटर का है, सो 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ डाउट है? पूछिए पूछिए, देखिए ऐसे नहीं है, में हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, सो इट्स योर प्राइम ड्यूटी टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन इनटू ड्राइंग द मेन डायग्राम। ये जो SFD BMD डायग्राम है, दिस इज लिटिल बिट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट में अभी राइज और फॉल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द प्रोजेक्शंस लाइन, और हमेशा हमेशा दैट आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ओरिजिनल डायग्राम दैट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। बी पॉइंट, सी पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है? डन, ओके। Okay, so we'll again see here, students. We will see here shear force calculation. All the answer are in negative. So सबसे पहले what I will do is I will draw little bit upward line. Okay, थोड़ा upward line draw कर लेता हूँ. So now very interesting diagram. Very interesting diagram it will be. AL 0 है, AR 0 है. So AL 0 है, A of R भी 0 है, B of L भी 0 है। ओ हो, so B of L is also what guys? B of L is also 0 here। B of R देखिए, B के पॉइंट में ही R साइड में -40 दिया है, so -40 will go somewhere here। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो यहाँ पर एक ये डाउनवर्ड फॉल आ जाएगा, बिकॉज द वैल्यू here is 40। ए के लेफ्ट साइड और राइट साइड में 0 है, सो वो ही पॉइंट पर आ गया, ठीक है। सो वो 0 से गया यहाँ पर, सो यहाँ पर एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, एंड देन इट इज 40 ईयर्स, सो ईयर विल बी 40 गाइस, ठीक है। बी ऑफ एल, सी ऑफ एल भी 40 है, -40 ही है सी ऑफ एल, सो एक स्ट्रेट लाइन यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं,
So here will be 40. Here will be 40. Afterwards -60, देखिए C पॉइंट में ही वो -60 गया है. It is going downwards here. ठीक है, 60 में गया है. Afterwards again it is -60, so again it will go here, it will be -60 and then 0. This is the SFD diagram. ये है आपका SFD diagram, ये है आपका shear force diagram students. ठीक है, so this will be the shear force diagram. Perfect, perfect. If you have any doubt students, you can ask, you can ask. ये रहा आपका SFD shear force diagram. But the most important one that we are going to draw and which will have a little bit challenge is what students is the BMD diagram. क्योंकि couple जब भी आया, there what you have to do, you have to use the rise और fall. वहां पर rise और fall आएगा और सब माइनस में ही है. सो एक बेस लाइन थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ करते हैं ना, -20 -100 ऑल दिस थिंग्स आर माइनस. ओके ओके, परफेक्ट. विल स्टार्ट विथ ए पॉइंट तो 0 ही आया है, सो चलिए 0. बट ए के राइट में, ए के पॉइंट में ही -20 आया है. सो फ्रॉम हियर यू हैव टू ड्रॉप स्टूडेंट्स. ओके, यहां से आपको ड्रॉप करना पड़ेगा. सो दैट विल बी 20. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वेर एवर देर इज ए कपल देर विल बी राइज और फॉल. देखिए कपल यहाँ पर है इसलिए वो फॉल हो गया, वो राइज भी हो सकता है बेंडिंग मोमेंट में. ओके, वो फॉल हो गया 20. सो हो गया ए की वैल्यू. अभी बी कितनी है? बी भी 20 है, बी भी 20 है. सो 20 भी यहाँ पर आ जाएगा. सो 20 भी यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? 20 भी यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट इज व्हाट? सी ऑफ एल. सी ऑफ एल है -100. ओ हो. सो 20 से लेकर डायरेक्ट -100 पर आ गया वो. So it will be what students? It will be downwards here. ये रहा downward value. Are you understanding? How much is the value students? The value is 100. The value is 100. C of left में वो -100 है और C of right में -90 है, मतलब थोड़ा सा increase हो गया. So ऊपर जाएगा वो. Okay, it will go where? It will go at the upward side students, that is 90. सो दिस इज 90 किलो न्यूटन इंटू मीटर. यूनिट भी आपको लिखना है, हर एक पॉइंट का यूनिट भी आपको लिखना है स्टूडेंट्स. ठीक है. -90 के बाद -210. -210 मतलब 200 से कम ही रहेगा. सो दिस विल बी -210 किलो न्यूटन इंटू मीटर स्टूडेंट्स. एंड यस, यू हैव टू क्लोज द डायग्राम. दिस इज द बेंडिंग मोमेंट. अभी देखिए ये पॉइंट में कपल था इसलिए वो राइज हो गया. एक तो राइज हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है. एक तो राइज हो सकता है या फिर फॉल हो सकता है स्टूडेंट्स. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग स्टूडेंट्स? परफेक्ट, परफेक्ट. Okay, so this was which diagram students? This was the BMD diagram, bending moment diagram. This was the bending moment diagram students. Okay, I hope that you have understood this question, you have understood this proper question. Okay, perfect. So in this way we have completed our type 1 cantilever beam. In next video we will see type 2, that is simply supported beam. Okay, so thank you so much guys, it was nice teaching you.